Welcome to another video on the channel Exploring Literature with Emmy. The topic today is Love Song of J. Alfred Prufrock, a poem by T.S. Eliot. Before we start the explanation of this very poem, I will request you, if you are new on the channel, go and subscribe the channel and don't forget to click the bell icon so you may get the notifications of the videos timely. So let's get started. The Love Song of J. Alfred Prufrock is a poem which was written by T.S. Eliot. T.S. Eliot is a famous modern poet. He was the poet of 20th century. He is an essayist and he is a critic as well. The Love Song of J. Alfred Prufrock. This poem was published in Poetry magazine in 1915. Later, it was published in Prufrock and Other Observations in 1917. T.S. Eliot wrote this poem when he was 22. Title of this poem is taken from Rudyard Kipling's poem, The Love Song of Hardale, published in Plain Tales from Hills. It is a dramatic internal monologue. It is written in free verse. It has 131 lines and it is an anti-love song. When we look at the title of the poem, the title is The Love Song of J. Alfred Prufrock. But actually this is an anti-love song because the person Prufrock is a middle-aged man who is searching for love and he wants to enjoy few moments with his beloved, but none of the women is interested in him because he is aged and his appearance is also not good. He is a bald. The initial 6 lines of the poem are in fact an epigraph. Now, what is epigraph? Epigraph is basically something, any paragraph or lines which are attached in the start of any work, so the themes or the tone of that particular work may be cleared. उन लाइन्स को उस पैराग्राफ को या उन लाइन्स को पोइम के किसी पार्ट को, किसी प्रोज के पार्ट को, किसी भी चीज़ को किसी वर्क के स्टार्ट में इसलिए अटैच किया जाता है ताकि वो जो वर्क लिखा जा रहा है उस वर्क की टोन, उस वर्क के थीम्स, उस वर्क में क्या एक्सप्लेन होगा उसको एक्सप्लेन किया जा सके. सिमिलरली टी.एस. एलियट ने ये जो एपिग्राफ अटैच किया है, इस एपिग्राफ को अटैच करने से उसने हमें जो पोइम के थीम्स हैं और जो पोइम की टोन रहेगी उसके बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश की है. The initial 6 lines of the poem are in fact an epigraph. I told you what is an epigraph. The lines written in Italian. These lines are written in Italian and those lines came from Canto 27 of Dante's Inferno. दांते ने जो इन्फर्नो लिखी थी उसकी कैंटो 27 से ये लाइन्स ली गई हैं. Now what is Inferno? The Inferno is medieval Italian poem that traces a pilgrim journey through hell, where he meets various sinners who narrate their sufferings. बहुत सारे लोगों से उसकी मुलाकात होती है, बहुत सारे सिनर्स से उसकी मुलाकात होती है वहाँ हेल के अंदर, और वो जो है उसको बताते हैं कि उन पर क्या गुजर रही है. These lines are spoken by Guido da Montefeltro. गाइडो दा मोंटेफेल्ट्रो ने ये लाइंस बोली हैं. अब वो जो पिलग्रिम है वो गाइडो से पूछता है that why he has been punished, and Guido respond with these words. उसका जो रिस्पॉन्ड था वो ये जो लाइंस हैं, these were the response of that person Guido. जी, तो लाइंस भी आपको अपनी स्लाइड पर नज़र आ रही हैं. द लाइंस आर
If I thought that my reply would be to someone who would ever return to earth, this flame would remain without further movement. But as no one has ever returned alive from this gulf, if what I hear is true, I can answer you with no fear of infamy. अब क्या है कि वो गाइडो जो है वो उसको बता रहा है कि मुझे जो है मैं अगर मुझे ये बात मालूम ना होती, और वो क्या बात है जो उसको मालूम है कि यहाँ पर जो शख्स भी आता है वो वापस नहीं जाता, जो भी शख्स हेल में आता है वो वापस नहीं जाता, वो कभी ज़िंदा वापस नहीं जाता। मीन्स टू से कि जो हेल में आ गया एक दफ़ा उसको तो वापस जाना ही नहीं है। तो अब वो कहता है कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम यहाँ आ गए हो और तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे, इसीलिए मैं जो हूँ मैं तुम्हें ये अपना जो तुम मुझसे पूछ रहे हो उसका रिप्लाई करने जा रहा हूँ, उस बात का आंसर देने जा रहा हूँ जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता और अगर मैंने ये बात बिल्कुल ठीक सुनी है कि जो भी यहाँ पर आया वो वापस नहीं गया, तो इसीलिए मैं तुम्हें जो हूँ अपने बारे में जो है वो सब कुछ बता रहा हूँ बग़ैर किसी खौफ के कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है। मुझे इस बात का खौफ नहीं है कि तुम किसी और को जाकर बता दोगे। ये जो पोइम है इट हैज़ 20 स्टांजाज एंड एन एपिग्राफ। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोइम इज इरेगुलर बट नॉट रैंडम। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम जो है वो हमें इस पोइम के अंदर फॉलो होती हुई नज़र नहीं आती। The various lines of this poem include the rhyming couplet AB scheme. ज़्यादातर लाइंस में राइमिंग कपलेट AB की स्कीम को फॉलो किया गया है, और एज वेल एज द अनराइम्ड पैसेजेस भी हैं। और ये जो 20 स्टांजाज हैं पोइम के अंदर, जो स्टांजाज हैं दे आर ऑफ 2, 7 एंड 12 लाइन्स। कोई स्टांजा 2 लाइन्स का है, कोई 7 लाइन्स का है, कोई 12 लाइन्स का है, यानी कोई पर्टिकुलर रिदम या वो चीज़ जो है वो फॉलो नहीं की गई। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द समरी ऑफ दिस वेरी पोइम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल discuss some general introduction. The love song of J. Alfred Prufrock is Eliot's earliest work that he was striving to compose during his college days. As I told, he was 22 when he was striving to compose that work, and he was only 22 years old. The poem at first appeared in poetry after being provoked by Ezra Pound in June 1915. The poem is said to be the most modernist work of Eliot. The poem somewhat mocks the modern standards of living, where people love tea more than they love people. Now we will come towards the development of the situation. The poem opens up with the invitation of Prufrock to us to come along with him to visit our dirty streets of a big foggy city that feels like London. वो हमें इनवाइट कर रहा है कि तुम एक बिग फॉगी सिटी में मेरे साथ आओ, और एक डर्टी सा सिटी है, और वो सिटी कौन सा है? लंदन है। ठीक है। मिस्टर प्रूफ्रॉक is desirous to show us some of the best places of the city. He wants us to see some best places of the city, and ये उसकी ख्वाहिश है कि हम वो जो best places हैं उनको देखें। Here I am going to share some lines of the text. Of restless night in one night cheap hotels and sawdust restaurants with oyster shells. Then we witness a bunch of women coming and going from the room, discussing about famous painter
Michael Anglio. Although Mr. Prufrock's dress is good, but rest of him is not. People comment on him that he has thin arms and is bald. गंजा है, ठीक है, और उसके बहुत पतले पतले बाजू हैं. But he is proud of his accomplishments. उसकी जो accomplishments हैं उन पर उसको फ़ख्र है. He is proud of his accomplishments. His accomplishments include like having drunk a lot of coffee. उसकी जो accomplishments हैं, क्या क्या उसने अचीव कर लिया है, उसमें क्या शामिल है कि उसने बहुत सारी कॉफ़ी पी रखी है. Living through mornings to afternoons and having known as a bunch of women. और वो जो है वो अपने सुबह से दोपहर कर देता है और दोपहर से सहपहर कर देता है और बहुत सारी ख़वातीन से जो है वो मिलता रहता है. Prufrock is afraid that he is growing old. उसको इस बात का खौफ है कि वो बूढ़ा हो रहा है. But he intends to other important stuff like rolling his pants और ईटिंग अ पीच. और वो अपने पैंट्स को जो है वो रोल कर लेता है, अपने पैंट्स को रोल करता है ताकि वो कुछ बेहतर दिख सके, और वो जो है वो आड़ू खाता है. देन ही asserts that he has heard mermaids singing but their songs are not for him. मरमेड की आवाज़ उसको सुनाई देती है, मरमेड को गाते हुए सुनता है, लेकिन वो कहता है कि वो सॉन्ग्स उसके लिए नहीं हैं. He then tells us that we have been living with him in an ocean. वो कहता है आप मेरे साथ एक ओशन में रह रहे हैं. We were sleeping in the ocean until we were wakened up by our human voices. हम ओशन में सो रहे थे और फिर यहाँ तक कि हमारी आँख खुल गई किस चीज़ से? लोगों की आवाज़ों से. As soon as our sleep is over, we sink in the salty ocean. हमारी जैसे ही आँख खुलती है हम उस सॉल्टी ओशन में सिंक कर जाते हैं. अगर हम इसके थीम्स के बारे में बात करें तो द थीम ऑफ द पोएम कंसर्न विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अ मॉडर्न मैन इज फेसिंग. मॉडर्न मैन जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, जो सिचुएशंस चल रही थी और जो मॉडर्न मैन के प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में जो है वो बात करता है इलियट अपनी इस पोएम में. द फर्स्ट प्रोमिनेंट थीम इनसाइड द पोएम इज एंग्जाइटी, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग विच लीड्स टू इनएक्शन. ठीक है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, फिर आप कोई एक्शन भी जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते. जाहिर है जब आप कोई फैसला ही नहीं कर पाते तो आपने आगे क्या करना है. देयर इज़ नो डाउट दैट और प्रेजेंट एज इज़ मार्क्ड विद एंग्जाइटी. ठीक है, सो इज़ मिस्टर प्रूफरॉक. हमारी जो एज है वो भी जाहिर है एंग्जाइटी वाली है, और जिस एज में ये लिखा जा रहा था वो भी एंग्जाइटी वाली है, और इसीलिए मिस्टर प्रूफरॉक इज़ ऑल्सो एन एंग्शियस पर्सन. He wants love but is anxious about the physical features which he cannot change. ठीक है, वो कहता है कि उसको मोहब्बत मिले लेकिन वो अपने फिजिकल फीचर्स को चेंज नहीं कर सकता, इसीलिए वो जो है वो तशवीश का शिकार है और वो परेशान है. He tries to minimize his physical limitations by styling his hair. ठीक है, वो अपने स्टेइंग स्टाइलिस्ट, एक स्टाइलिक वे में रहते हुए और वो अपने हेयर्स को जो है वो स्टाइल करता है, अपने बाल बनाता रहता है. बट ही इज़ बाल्ड, लेकिन वो जो है वो तो है ही गंजा. ठीक है, हिज एंग्जाइटी रिजल्ट्स इन लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग. ठीक है, अब उसके अंदर कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, फैसला करने की सलाहियत नहीं है. ठीक है, एंड ही डज नॉट नो वेयर ही इज़ हेडिंग टूवर्ड्स, और वो ये भी नहीं जानता कि वो आगे किस तरफ को जा रहा है. द सेकेंड नोटेबल थीम ऑफ द पोएम is desire. Desire यानी ख्वाहिश. The desire of Mr. Prufrock is already obvious from the title of the poem. Title of the poem से हमें पता चल रहा है कि ये जो मिस्टर प्रूफरॉक की क्या ख्वाहिश है. वो चाहता है कि उसको मोहब्बत मिले. To enjoy a few romantic moments of his already sinking life, he longs for sexual communication, but due to his anxious state, he cannot proceed further, which ends in hopelessness. Prufrock himself means how should I begin. Prufrock का जो वर्ड है उसका मतलब है how should I begin. Prufrock एक ऐसे शख्स को कहते हैं who is confused, who is anxious, who is worried. ठीक है, who is hesitant.
द थर्ड थीम ऑफ दिस पोएम इज एलियनेशन। एलियनेशन का क्या मतलब है? आप एलियंस की तरह रह रहे हो और लॉनलीनेस है कॉज्ड बाय मॉडर्निटी। ठीक है, द पोइट एक्नॉलेजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक लैम्प्स इन द मेडिकल प्रोफेशन एज वेल एज फैक्ट्रीज। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उनकी जो इम्पोर्टेंस है उसको भी वो रियलाइज़ कर रहा है। बट सच ग्रोथ हैज़ कम विद द कॉस्ट ऑफ एलियनेशन। लेकिन इसकी कीमत हमें क्या चुकानी पड़ी है कि हमारे पास लॉनलीनेस और एलियनेशन आई है। द स्पीकर सीज येलो फॉग एज मोर एक्टिव एंड अलाइव देन ह्यूमंस। वो जो स्पीकर है हमारी पोइम का वो क्या कह रहा है कि वो जो येलो फॉग है ना लंदन के अंदर, ठीक है, लंदन में जैसे ठंड होती है तो वो जो येलो फॉग है वो ज़्यादा एक्टिव है और वो ज़्यादा अलाइव है इंसानों की निस्बत। क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा जो है वो फेस करना पड़ा था इलियट को। ठीक है, एज सून एज इलियट हिट द पब्लिश बटन द पोएम वॉज मेट विद सिवियर क्रिटिसिज्म। गैरिसन केलर, a humorous communist, remarked on the poem as thus. इसको नोट कर लीजिएगा, एज अ कोटेशन कोट कीजिएगा। दिस पोइम pretty much killed off the player of poetry for millions of people who got dragged through it in a high school. Eliot was met with sharp criticism because he made his poem public at time which was not suitable for such kind of subject. जाहिरी बात है उस वक्त लोग जो हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैक्ट से गुजर रहे थे और वो जो है वो लव सॉन्ग के बारे में बात कर रहे हैं, तो जाहिर है वो टॉपिक जो है वो जो सब्जेक्ट है वो एक्सेप्टेबल नहीं था। ऑलमोस्ट द होल वर्ल्ड वॉज कॉट अंडर द हॉरर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन, देयरफॉर इट वॉज नॉट अ सुटेबल टाइम फॉर प्रूफ टू लुक फॉर समवन टू बी इन लव विद। अगर हम इसका फिगरेटिव एनालिसिस करें पोइम का, देयर आर मैनी फिगरेटिव डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोइम at once to elevate its poetic glamour. The poet has used personification when he grants the human quality of rubbing to yellow fog, as well as waving of the trees. Simile occurs in the poem when the poet compares the streets with a difficult argument with the use of words like to indicate the complexity of navigation. There are many metaphors used in this poem. For example, Hollywood is used as a metaphor for the entertainment industry and Washington is metaphor for the government. Irony is also at works in the poem, ठीक है, irony भी मौजूद है, which states the opposite of what is actually said. For instance, when a poet says that he has plenty of time, he is actually running short of time due to his growing age. Also, the title of this poem is ironic as the poem is not practically a love song. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये एक एंटी लव सॉन्ग है। सेटिंग और इमेजरी की अगर हम बात करें, द पोएम टेक्स प्लेस इन द फॉगी एंड डार्क सिटी ऑफ लंदन इन द सॉफ्ट नाइट ऑफ अक्टूबर। द इमेजेस यूज्ड इन द पोएम आर ब्रिलियंट एंड vibrant. The images may include like evening in spread out against the sky, sawdust restaurants with oyster shells, licked its tongue, a dying fall, perfume from a dress, and reading savored on a waves. स्ट्रक्चरल एनालिसिस अगर करें, जैसे मैंने पहले भी बताया, द पोएम इज कंपोज ऑफ 140 लाइन्स। सॉरी, वहाँ मैंने 130 बोल दिया, लिखा भी शायद 130 गया था। द पोएम इज कंपोज ऑफ 140 लाइन्स। इट इज डिवाइडेड unevenly into 20 stanzas. There are a few rhyming couplets at the beginning of the poem. The poem in parts is blank verse and somewhere we hear the rhythmic pattern of iambic pentameter. Conclusion की तरफ आते हैं. The love song of J. Alfred Prufrock is an interesting monologue depicting the social issues as well as the
epic meaning program of the mankind in modern times। अब क्या है कि यह जहाँ हमें एक ऐसे शख्स के बारे में पता चल रहा है जो कि एक मिडल एज का शख्स है, एक उधेड़ उम्र शख्स है, और वो जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसको लव नहीं मिला, और वो अभी जो है वो चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी के जो उसके सिंकिंग डेज़ हैं, जो डूब रहे हैं, जो ख़त्म हो रहे हैं दिन, उसकी ज़िंदगी जो है वो इख्तिताम पजीर होने वाली है, तो वो इन चंद दिनों में वो चंद रोमांटिक मोमेंट्स जो है अपनी बिलवड के साथ जो है वो इंजॉय कर सके। और इसीलिए वो जो है वो ही इज़ इन सर्च ऑफ वुमेन, लेकिन कोई भी औरतें जो हैं वो उसको मुंह नहीं लगाती, कोई भी औरतें जो हैं वो उससे बात करना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो एक उधेड़ उम्र शख्स है, ही इज़ अ बाल्ड, वो एक गंजा शख्स है। उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो उसके फिजिकल फीचर्स हैं, वो उसको जो है वो अपीलिंग नहीं बनाते, लेकिन वो कोशिश करता है, वो अपनी स्टाइलिंग करने की कोशिश करता है, अपने हेयर स्टाइल्स बनाने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके अलावा वो अपनी पैंट्स को जो है वो फोल्ड करता है, ठीक है। उसके अलावा उसने कोट पहन रखा है। ओवरऑल उसकी एक ऊपर से जो उसने अपनी लुक बनाई हुई अच्छी है, ड्रेसअप अच्छे तरीके से हुआ है, उसकी ड्रेसिंग अच्छी है, लेकिन वो उसके जो फिजिकल फीचर्स हैं उनको वो चेंज नहीं कर सकता, और इसीलिए वो जो है ही इज़ लुकिंग फॉर द लव, लेकिन उसको वो नहीं मिल रहा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वेरी पोइम। आई होप इट्स क्लियर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।